Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are doing some questions, some examples from your NCERT book, from your textbook, or it belongs to other books also like RD and Pearson and other than that. So let us proceed. Here you have the first question. This is example. You have given that two parallel lines L1 is parallel to L2, ठीक है, are intersected by transversal P. Show that quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a रेक्टेंगल. देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, दो लाइंस है हमारे पास L1 L2 जो कि पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल साइड P लाइन कट करी है और आपको दिखाना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कैसी क्वाड्रिलेटरल, जो बाइसेक्टर्स की हेल्प से फॉर्म हो रही है. कौन से बाइसेक्टर, कौन से एंगल्स बाइसेक्ट करिए, ये इंटीरियर एंगल्स. बेसिकली these two are the lines, this one is L1 and this is L2, okay, and we have this transversal P, ठीक है. Now interior angles we are talking now, so these are the interior angles, this, so this is one angle bisector of this is the bisector of this, here it is the bisector of this, and here it is the bisector of this. You need to show this is a rectangle. Let me name it as A, B, C, T. You can do whatever the naming you want to do. Basically you just need to show this ABCD is a rectangle. Before going to that, this angle is equals to this angle because this is the angle bisector. Similarly, this angle is equals to this angle because of the angle bisector. Similarly, this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle. ठीक है. देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल आर्क लगाई है और सिंगल ही मार्किंग की है. यहाँ पे मैंने सिंगल आर्क लगाई है लेकिन डबल मार्किंग की है. यहाँ पे डबल आर्क सिंगल मार्किंग. सो मेक श्योर डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. ठीक है. Is it clear? Now next is basically you need to show this is a rectangle. Before going to rectangle, let me show this is a parallelogram. If this is a parallelogram, then opposite sides of a parallelogram are equal, and the rest thing will be that you just need to show one angle is of 90 degree. Is it clear? ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक एंगल 90 डिग्री का दिखाते हैं. इसको एंगल 1 नाम ले लो, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4. ठीक है. मुझे पता है बिकॉज L1 इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस L1 इज अ straight line, then angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. Reason is angles made on straight line. ठीक है. अब मुझे पता है, now we know that angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4 angle bisectors है ना. हमें पता नहीं ये एंगल बाइसेक्टर मैंने डायग्राम में दिखाया आपको. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, देखो अब मुझे जिसे रेक्टेंगल दिखाना है उसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का दिखाऊंगी, सिर्फ एक ही दिखाऊंगी. ठीक है.
तो मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, मतलब मुझे 1 और 4 नहीं चाहिए। तो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 एंगल 1 को क्या रखेंगे 2, और 2 है ही हमारे पास। एंगल 3 और एंगल 4 को भी क्या रखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 times of angle 2 plus 2 times of angle 3 is equals to 180 degree. Taking 2 common from both the terms, angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एटलीस्ट हमें एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना होता है, बाकी भी आ जाएंगे कैसे। सिमिलरली वी कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अब इसे और इसे दिखाना है, दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे एक एंगल सफिशिएंट होता है, बट हम दिखाएंगे कैसे। देखो एंगल्स की बात तो हो गई, अब मुझे क्या चाहिए, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स भी इक्वल होना चाहिए ना। दिस इज अ रेक्टेंगल, वी आर डीलिंग वी नीड टू शो दिस इज अ रेक्टेंगल, सो वी नीड टू शो कि इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मुझे पता है कि इसको 3 4 5 और 6 7 and 8, ठीक है, मैंने नेमिंग की है सो दैट वी डिडंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ सी, हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 7 प्लस एंगल 8। रीजन इज alternate interior angles. Similarly we know that this angle 3 plus angle 4 is equals to angle 5 plus angle 6, same reason, alternate interior angles, है ना। now अब यहां से देखो, अगर ये दोनों एंगल्स हमारे पास सेम है, इक्वल है, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4, मुझे पता है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ। मुझे रेक्टेंगल पे आना है, मुझे रेक्टेंगल पे आना है, तो मुझे 3 यूज करना है, इधर से 6 यूज करना है, मतलब मुझे 5 रिमूव करना है और इधर से 4। तो एंगल 3 की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, तो 2 से 2 कैंसिल, बेसिकली क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 3 इक्वल्स टू, सॉरी एंगल 6 दिखाना था मुझे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7 हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। नाउ अगर ये चीज हमारे पास हो गई इस क्वाड्रिलेटरल में, ये चीज, तो जो हमारे पास ये बताता है एंगल 3 एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7, दैट मीन AB is parallel to CD. Angle 3 equals to angle 6 shows that BC is parallel to AD. This implies this is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, and opposite sides of a parallelogram are always equal. That means AB equals to CD and BC equals to AD. And also opposite angles of a parallelogram are equal. Then this is of 90, then this is of 90. Now these two angles are forming co-interior because these are the parallel lines, so these two form co-interior. This is of 90, then this will be 90, and this is opposite to this angle, so this will be of 90 degree. Hence ABCD is a rectangle. Is it clear? Is it clear? इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ, को-इंटीरियर, जो मैंने वर्बली बोला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, show that again this is from your textbook examples, show that bisectors of angles of parallelogram form a rectangle. Again we need to show a rectangle, but this time
that is made up of bisectors. Basically this is a parallelogram, ये bisector ऐसे, this is A B C D, here it is P Q R S. okay, P Q R S. आपको ये दिखाना है कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है. पहले तो मुझे साइड्स, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, सिमिलरली दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, this one is equals to this one and this one equals to this one, here it is this equals to here equals to this. अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इस पे काम करते हैं, किसी भी एक पे काम कर लीजिए, चलो इस पे कर लेते हैं. हमें पता है सिंस ABCD is a parallelogram, because we have, so angle A plus angle B is equals to 180 degree. Reason is co-interior angles, this and this are co-interior angle. अगर ये दोनों co-interior हैं, ठीक है, इसको नाम दे रही हूँ मैं एक बार एंगल 1, इसको नाम दे रही हूँ एंगल 2, इसको एंगल 3 एंड हियर इट इज एंगल 4. ए को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बी को लिख सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देखो मैं ना एक बार इस ट्राइंगल पे काम कर रही हूँ, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे, आई होप दिस इज विजिबल टू यू. इस ट्राइंगल पे काम कर रही हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल पे काम कर रहे हो, तो मुझे इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल चाहिए, मतलब 1 और 3 चाहिए, 2 और 4 नहीं चाहिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2 टाइम्स डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि हमने अभी पीछे किया 90 डिग्री आ गया, ठीक है. और हमें पता है अगर मैं इस ट्राइंगल में हूँ, इन ट्राइंगल APB, दिस वन, जिस जो मैंने अभी शो किया था, इस ट्राइंगल के अंदर अगर इन दो एंगल्स का सम 90 है तो रेस्ट विल बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. दैट मीन एंगल APB इज इक्वल्स टू ऑफ 90 डिग्री बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. चलो मैं पूरा ही कर देती हूँ. एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है. नाउ वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, अभी हमने ऊपर किया है, ठीक है. तो एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री. इज इट क्लियर? Is it clear to all? Now similarly we can say that angle SPQ is equals to angle PQR is equals to angle SRQ is equals to 90 degree. SPQ, PQR, QRS, SR, ठीक है. तो सारे 90 डिग्री हो गए. Then to me this is a, that means this is a rectangle. ऐसा क्यों? अब आप कहोगे कि मैम आपने तो साइड्स बताई ही नहीं. इट्स ओके ना, वी डिड द थ्योरम. अपोजिट एंगल्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, एंड इफ दैट इज पॉसिबल देन दिस इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इट्स अ पैरेललोग्राम एज पेयर ऑफ opposite angles are equal. अब आप कहोगे कि मैम ये चीज तो हम इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे. बेटे इसमें ना सिर्फ एक ही पेयर आया था, दूसरा पेयर नहीं आया, और हमें दोनों पेयर चाहिए होते हैं, ठीक है. समझ में आया? Is this video useful to you? Let me know in the comment section, and do try to another questions by yourself. They are quite easy. This seems to be quite difficult to you just because of the might be some missing of practice or some new concepts are grabbing you are here, like in 8 might be are not familiar with these term, with some of the terms, so here it is. Thank you.